Good morning, sir. Good morning. Very good morning. How are you? We are fine, and you? I am also fine. Thank you so much. Okay, sir, I have a question. Can you get your mic in your hands? Okay. Not just yes. Okay, sir. This. Okay. I have a question. Yes. May I ask you, sir? Yes. You can ask. Okay. First question is this. What's your father name? My father's name is S.K. Barnwal. I mean, if you have to know that full name, Shiv Pujan Barnwal. Okay, sir. Next question is what does your father do? My father is a businessman. He does business of clothes. Where, sir? He does business at Kadamur side. And you know that to put up, shut the door, please. The sound will come then. Okay, next question, should I? Okay, sir. What's qualification of your father? My father's qualification is, I think, 8 pass. 8 pass. Yes. Okay, sir. How is behave of your father? My father's behavior is not more serious, but that's medium. He doesn't just be serious towards of any works. Okay, sir. What does your father wear mostly? He wears dhoti and kurta. Dhoti kurta. Yes, he doesn't. I have not just seen that pant and short because he is old. I mean, the above just 50 plus. That's why he wears dhoti and kurta. Okay, sir. Does your father care on children education? Yes, he cares on children's education. Only just little, not just. I mean the elder. Yes, he just cares ABCD Kakhaga. He doesn't care about the engineering. He doesn't care about the medical because he has not just thought about it. He has thought only ABCD Kakhaga. That's past means that you are educated person. So I am against of this. I am against of such matters from my parents. मैं अपने पेरेंट्स से इसी सब बात को लेकर अगेंस्ट में रहता हूँ कि वो लोग केयर करते हैं, लेकिन केयर किस चीज का करते हैं? केवल ABCD क ख ग घ, मनोहर पथी, चाचा नेहरू, दैट्स ऑल। कि 5th तक वो बच्चा पढ़ लिया तो ही जस्ट आई मीन द पास। बट पैसा कहाँ लगाना है भाई? पैसा लगाना है ग्रेजुएशन बाद। पैसा लगाना है ग्रेजुएशन बाद। उसको मेडिकल की तैयारी कराओ, उसको इंजीनियरिंग की तैयारी कराओ, उसको कंपटीशन की तैयारी कराओ। These are the strong route to make a strong person. A strong व्यक्ति बनाने के लिए ये सब strong route है, ठीक है ना? ये सब जनरल है, बेसिक स्टडी है 1 to 5, 5 to 10th, right? So I am against of it, against of my parents. They don't provide the education, higher education to their children. Okay, sir. Okay. What's the hobby of your father? My father's hobby. At present time I am looking. My father's hobby is just hitching the reel. Hitching the reel. He just watch and sometimes he watch the news. वो न्यूज देखते हैं, right? Okay, sir. Would you like to tell me age of your father? Yes, already I have mentioned that. So my father's age is 50 plus. Okay. Do you respect your father? Yes, generally every should respect his father and same way that I respect my father. सब कोई को respect करना चाहिए, right? I mean the parents को, माता पिता को, वैसे ही मैं भी respect करता हूँ. But I don't just reality just by the help of camera. Just I am saying, I only respect. I don't care on illiterate matter. मैं वो सब illiterate बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ. Because my parents touch in a very illiterate matter. That's मतलब जाहिलतापन वाली बातों पर मेरे को पसंद नहीं है. Right? I don't mean to other persons, mean to neighbors, mean to I mean the own works, mean to own matters. मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बाल बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उस पर ध्यान देना है, ना कि दूसरे के बाल बच्चों के साथ क्या हो रहा है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है. ये सब ज्यादा मैटर मेरे घर में है, तो आई डोंट लाइक इट. ओके सर. सर एक हिंदी में सवाल है. यस. एक माता पिता की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, माता पिता की आज की क्वेश्चंस हैं तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. अगर आप पूछ ही रहे हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां. माता पिता मीन व्हाट दैट्स जस्ट सीड, बीज. माता पिता मतलब बीज, किसी भी चीज का बीज, ठीक है ना? अगर वो मिट्टी में जाता है बीज
जैसे मिट्टी में जाएगा वैसे उसका फल अंकुरित होगा, वैसे उसका फल अंकुरित होगा। कभी आपने देखा है कि आम के पेड़ पर लीची लगते हुए? नहीं। नहीं, आम के पेड़ पर आम ही लगेगा, लीची के पेड़ पर लीची ही लगेगा, केला के पेड़ पर केला ही लगेगा, केला के पेड़ पर केला ही लगेगा। अगर आज के डेट में कोई बच्चा खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है तो सबसे पहली गुणवत्ता किसकी जाएगी? माँ बाप की जाएगी, माता पिता की जाएगी। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? सबसे पहली गुणवत्ता किस पर जाएगी? माता पिता की जाएगी। लेकिन हम लोग आज के डेट में क्या कर रहे हैं कि बच्चा खराब हो गया है, बच्चा खराब हो गया है। खराब हो नहीं गया है, तुम खराब किया है। 80% तुम्हारी गलती है, 80 to 90% तुम्हारी गलती है। बच्चा खराब नहीं हुआ है। किसी ने कहा कि आज के डेट में नहीं, जो नया है, नए बच्चे या नए, आप लोग नए ही है, आप लोग समझिए, जो नए बच्चे हैं वो आग उगल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग उगल रहे हैं। मैं 100% ये बात पूछना चाह रहा हूं कि वो आग उसके मुंह में डालने का कौन दिया है? उसके मुंह में आग डालने का वो शब्द कौन दिया? वो कहां से गाली सीखा है? हमारे समाज से, कि वो बचपन से ही गाली सीखते आ रहा है? नहीं। हमारे घर पर जाइएगा, सिवान, मैं सिवान रहता हूं, तो हमारे घर पर जाइएगा तो मैं अपने आसपास के घर के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना, कि एक घर है प्योर भोजपुरी में बात करते हैं लोग, गाली गलौज से बात करते हैं लोग। एक सामने वाला घर है, ठीक है ना, वो इंग्लिश मिक्स करके बात करते हैं लोग, मेरे सामने वाला घर। एक बगल वाला घर है वो हिंदी बात करते हैं लोग। मेरा घर है तो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मिलाकर बात करते हैं। तो देखिए ये कहां से उपज हुआ? ये हमारे घर से उपज हुआ, ठीक है ना। तो एक पेरेंट्स की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी। जैसे मतलब कि एक मतलब पौधा को पेड़ बनाने के लिए माली जितना जिम्मेदार होता है उतना ही एक माँ बाप जिम्मेदार होते हैं एक बच्चे को मतलब कि एक मतलब जिम्मेदार नागरिक बनाने में, ठीक है ना। जैसे माँ बाप होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे, ना होने वाला सवाल नहीं है। अब रही बात कि देखो छोटे से ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे दोस्तों के साथ रह रहा है, कौन स्कूल में नामांकन कराना है, क्या क्या किताब प्रोवाइड करना है, क्या पहनावा देना है, वो सब पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी आती है, वो सब पेरेंट्स के ऊपर। अगर शुरू से ही एक लड़की अगर सलवार समीज पहनते आ रही है, उसको एक दिन जींस पहना दो, देखो उसको बहुत ऑड टाइप का फील होगा, खराब फील होगा, 100% करे वो खराब फील होगा, वो समाज में नहीं जाएगी, वो समाज में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने शुरू से ही उसको क्या पहना दिया? सलवार समीज पहनाया, सूट पहनाया, ठीक है ना। वो जींस नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी तो नहीं पहनेगी। लेकिन तुम माँ बाप उसको शुरू से ही अधकट्टी पैंट पहना रहे हो, जींस पहना रहे हो, तो बड़ी होकर सलवार समीज पहनेगी? नहीं सर। है, बड़ी होकर सलवार समीज या सूट पहनेगी तुम्हारे कहने पर? तो वो तो अधकट्टी पहनकर जाएगी। और जैसे अधकट्टी पहनकर जा रही है, समाज में जा रही है, मार्केट में जा रही है, और कोई गलत कमेंट कर रहा है, तो समाज गड़बड़ है कि माँ बाप गड़बड़ है? कौन गड़बड़ है जी? कौन गड़बड़ है? माँ बाप सर। बोलिए ना, माँ बाप गड़बड़ है ना। तो फिर हम कैसे कह ले कि माँ बाप अच्छे हो गए? माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं। अभी एक हाल ही फिलहाल में IITian बाबा जो प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना, IITian बाबा का कहनाम है, आप देख सकते हैं, वो बदनाम नहीं कर रहे, रियलिटी है। IITian बाबा का नाम है कि हमने IIT कर लिया, सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ देख कर लिया, और घर छोड़ने का मकसद एक ही चीज है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप। क्यों भाई? क्योंकि माँ बाप हमेशा घर में क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। अब झगड़ रहे हैं तो सारा, अब बच्चा स्कूल से आ रहा है, बच्चा कोचिंग से आ रहा है, बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, अब तुम क्या कर दिया? इधर झगड़ा स्टार्ट कर दिया, तुम मैं स्टार्ट कर दिया। उसकी पढ़ाई पर फोकस पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 100% नहीं पड़ेगा। तो अगर बच्चा को खराब होना है या बच्चा को अच्छा होना है, तो ये अच्छा और खराब होने की जो परिस्थिति पैदा करने वाला कोई होता है तो वो माँ बाप होता है। माँ बाप को ये समझना चाहिए, माँ बाप को समझना चाहिए। कहीं लिखा है कि कर्मों से मिलता है फल तभी तो देते हैं कर्मों पर जोर, कर्मों से मिलता है फल तभी तो देते हैं कर्मों पे जोर, पिछला पहिया उधर ही चलता अगला पहिया चले जिस ओर। माना यानी हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर के माँ बाप जितना बजे उठेंगे उतने बजे वो बच्चा भी उठेगा। पहले तू तो उठ,
लेकिन हम क्या करते हैं कि हम गार्जियन होकर, बुजुर्ग होकर हम सोए रहते हैं। अब बच्चे को उठकर क्या भेजते हैं? स्कूल भेजते हैं। नहीं, गलत। तुम पहले उठ जाओ, तैयारी हो, देखो ऑटोमेटिक बच्चा पीछे से उठेगा, वो भी स्कूल जाएगा आपको बिना कहे। लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी अपनी मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे को ऊपर ढालते हैं, और बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाता है? ट्रैक से ट्रैक लेस हो जाता है। तो ये सब जिम्मेदारियां जरूर फॉलो करना चाहिए हर माँ बाप को, हर माँ बाप को। अभी हाल ही में देखिए, मैंने गेट बंद करा दिया। अब देखिए, अब जीता जागता, एक्चुअली मैं इसको तैयारी नहीं कराया था, मैं गेट बंद करा दिया। गेट बंद करा दिया, लेकिन बाहर क्या जा रहा था जी? आप सच सच बताओ, बाहर क्या जा रहा था? बाहर क्या जा रहा था? बताओ बताओ, माइक में बताओ। किसी का मटकोड़। अब देखो, इसको बारात इस समय ध्यान में आ रहा है, किसी का मटकोड़ जा रहा था, ठीक है ना? मैं 100% कर रहा हूँ, मटकोड़े जा रहा था, बारात नहीं जा रहा था, किसी का मटकोड़ जा रहा था। अब उस मटकोड़ में आप जाकर देखेंगे, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं लोग, मनोरंजन कर रहे हैं लोग, मटकोड़ जा रहा था, उसमें देख लो, पापा सुबह कचहरी में 6 बजे के चले गए हैं अपने काम करने, और मम्मी गोल गोल मटोल मटोल क्या कर रही है? डांस कर रही है। और बेटा और बेटी को कहाँ भेज रहे हैं? स्कूल भेज रहे हैं। आज संभव है ऐसे? क्यों भाई, क्यों संभव? ऐसे नहीं है। एंटरटेनमेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ एडुटेनमेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना? बच्चा बच्ची को रोक लिए हैं, बेटा बेटी को आज स्कूल मत जाओ, आज कोचिंग मत जाओ, चलो मेरे साथ मटकोड़, मैं ठुमका लगाऊंगी, तुम भी लगाओ, और लगाते हुए जा रहे हैं। हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं सनम। यहां से वहां तक जितने बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको बर्बाद करते आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ये बर्बादी नहीं है, रियलिटी बोल रहे हैं। वो डांस है, लेकिन उसकी भी क्या होनी चाहिए? उसकी भी एक क्या होनी चाहिए? लिमिटेशन होनी चाहिए। ये देखिए 100% कर रहे हैं, आउट ऑफ लिमिटेशन, आप जाकर देख लो, वो लिमिटेड में नहीं है, वो लिमिटेड में नहीं है। अब तब हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या हो, हमारा बच्चा हमसे अपग्रेड नहीं होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। तो एक माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी ऐसी होती है जो हमारे आने वाले फ्यूचर पर, हमारे आने वाले भविष्य पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। हम जैसे करेंगे वैसा हमारा फ्यूचर करेगा, ना करने वाला। हाँ, 10% 15% ऐसे उदाहरण हैं, मैं स्वीकार करता हूं, 10-15% ऐसे उदाहरण हैं जो दोस्तों के चक्कर में पड़कर, गलत विधियों के चक्कर, गलत कार्यों के चक्कर में पड़कर बाल जो भी लड़के और लड़कियां हैं वो खराब हो जाते हैं। तो उसका भी रीजन है। तुम उस समय कहां था? उस समय तुम कहां था? उस समय कहां था जब हमारा लड़का या लड़की किसी गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ रहा था? तो उस समय भी तू ध्यान में रख, तू ध्यान करता था, देखता था, तू इग्नोर करता था। कौन माँ बाप नहीं जानता है कि मेरा बेटा बात करता है, कहीं मेरी बिटिया कहीं बात करती है, जानते हुए इग्नोर करता है? कैसे इग्नोर करता है भाई? एक बार तो बोल तो दे कि ठीक है तू बात कर ले, लेकिन इसका परिणाम तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। एक बार तो बोल तो दे कि ठीक है तू बात कर ले, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तुम्ही को उठाना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी कब उठाते हैं? जब लड़का और लड़की घर छोड़कर फरार होते हैं, तब कहते हैं कि माँ बाप के हाथ में आजकल के बाल बच्चे नहीं है। क्यों नहीं है? पर समय से लेकिन पहले, हाँ, तुम समय से पहले केयर ही नहीं करता है, समय से पहले तुम केयर ही नहीं करता है, इसलिए वो क्या करता है? वो केयर कर देता है। तो वी हैव टू केयर अबाउट इट, वी हैव टू केयर अबाउट इट। एक बाल बच्चे को परवरिश करने में कितना खर्च लगता है, कितना मेहनत लगता है, कितना दौड़ धूप लगता है, कहां कहां जाना पड़ता है। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो दूसरा कोई करेगा और वो अपना लाभ उठाएगा। तो खर्चा तो देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा, उसके लिए दौड़ धूप तो करना पड़ेगा, तभी तो होगा। एक लड़का और लड़की का संबंध बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। कैसे बन जाता है जी? एक लड़का लड़की का संबंध, कनेक्शन बन जाता है क्योंकि लड़का उस लड़की की पूरी जिम्मेदारी उठाने लगता है कि फॉर्म भरो, पैसा हम देंगे, खर्चा हम देंगे। अब बाप क्या कर रहे हैं? चलो भाई बिटिया को तो अच्छा है, परवरिश हो ही रहा है, तो परवरिश हो रहा है तो दूसरा कोई परवरिश कर देता है। तो वी हैव टू केयर अबाउट ऑल द पेरेंट्स। सभी पेरेंट्स को ये सारी बातों पर ध्यान देना होगा, चाहे हमारा लड़का हो चाहे हमारी लड़की हो। अगर इस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा परिवार
खराब होना तय है, ठीक है ना। और रही बात कि हमारा लड़का लड़की हम पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं उस माँ बाप से पूछ रहा हूं कि क्या वो माँ बाप वो अपने माँ बाप का ध्यान दिया है, कितना ध्यान दिया है। अगर इसके बारे में जानकारी लेना है तो ठीक अपने आसपास के जो दादा दादी है उनसे जाकर बात करो कि हमारे दादा दादी को हमारे माँ बाप कितना ध्यान दिए हैं, कितना ध्यान किए हैं। अगर वो ध्यान किए हैं तो ऑटोमेटिक ये तो क्या आ जाएगा, जैसा बचपन में वैसा बचपन में, नहीं तो ऑटोमेटिक मैं भी ध्यान दे। ठीक, अगर मैं अपने माँ बाप को जितना ध्यान दे रहा हूं, मेरा बाल बच्चा मेरे ऊपर ध्यान देगा, मेरा बाल बच्चा मेरे ऊपर जितना ध्यान देगा उसका बाल बच्चा उसके ऊपर उतना ध्यान देगा। तो ये सब जिम्मेदारियां हैं और ये सब जिम्मेदारियां उठाना है, हर एक माँ बाप को उठाना है, केवल बाप को ही नहीं, माँ का भी उतना ही कर्तव्य बनता है जितना बाप का भी कर। अब माँ में थोड़ी सी सॉफ्टवेयर होती है तो वो घर की कर्तव्य को संभाले, घर की जिम्मेदारियां को संभाले, ठीक है ना। और बाप का जो दायित्व है वो बाहर की जिम्मेदारियों को संभाले। ना एक अच्छा परवरिश होने का वो मतलब कि गारंटी हो ही नहीं सकता है, 100% गारंटी है कि वो बच्चा जो भी मतलब पलेगा बढ़ेगा या परवरिश होगा 100% शुद्धता के साथ परवरिश होगा, जिम्मेदारी के साथ परवरिश होगा। हमारा छोटा बच्चा है, आज भी मैं बोल रहा हूं, कितना 2-3 माह का है, 2-3 माह का है, ठीक है ना। उसको हम उतना एक ही बार न दे दें, एक ही बार उतना फैसिलिटी न दे दें कि वो फैसिलिटी में चूर हो जाए, एक ही बार उतना कम भी न दें, ठीक है ना, कि उसको फैसिलिटी से कोई लेना ही देना न रहे। तो हमको मीडियम में चलना है, और लोग मीडियम में चलाना जानते नहीं, या तो एक ही बार 80 के स्पीड चलाएंगे या तो 20 के स्पीड चलाएंगे। मीडियम में गाड़ी चलाओ, तुम अपने गंतव्य स्थान तक, अपने मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तो ये सारी जिम्मेदारियां रहा, आपको ये सब फॉलो करना चाहिए। आप लिख लीजिए सुबह से शाम तक, केवल आपको कमाना पैसा ही मात्र जिम्मेदारियां नहीं है। अगर पिता है तो माँ को अगर केवल घर का कार्य ही जिम्मेदारियां नहीं है, बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं। बच्चों को अगर सही से परवरिश की, कब स्कूल जा रहा है, कब स्कूल से आ रहा है, कहाँ खाना खा रहा है, उसके हाथ में क्या है, मोबाइल में क्या है, उसके बैग में क्या है, वो कौन सा कपड़ा पहन रहा है, ये सब पर ध्यान देना है। अब ये नहीं कि हमने कपड़ा दे दिया, वो रंग बिरंग कपड़ा पहन रही है या पहन रहा है, तो इसका तो कोई ना कोई वजह है भाई। अब लड़के हैं, वो पहन रहा है रंग बिरंग के, हम खुश है कि वाह पैसा बटोर को कर रहा है। एक दिन पता चला कि वो स्टेशन पर पकड़ाया है, तो क्या किस मामले में पकड़ाया, तो मोबाइल छीन रहा था। हाँ, यात्रियों से क्या कर रहा था, मोबाइल छीन रहा था, हो गया मामला, गड़बड़ हो गया। एक दिन अचानक मैंने बैग चेक कर दिया तो उसके बैग में 2-2 मोबाइल, 3-3 मोबाइल था। ये कैसा मोबाइल है, तो एक पिंकिया का, एक रिंकिया का, एक मेरा है। तो ये दोनों मोबाइल तो बनवाने के लिए दी थी नहीं। एक दिन पता चला कि छापा पड़ा उसके घर पर कि पिंकिया, रिंकिया, मिंकिया तीनों रेस्टोरेंट में है। तो ये सब देखना है, सभी माँ बाप को देखना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं और गलत विधियों में, गलत कार्यों में फंस जाते हैं और माँ बाप उसको इग्नोर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं कि वहीं खुद समाज से, घर से, माँ बाप से इग्नोर हो जाती है और कहीं अपना देश छोड़कर दूर देश चली जाती है। तो वी हैव टू केयर अबाउट इट। ये सब पर केयर करना है, चाहे हम हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे आने वाले माँ बाप हो, सबको केयर करना है, ठीक है ना। और क्या क्या माँ बाप की जिम्मेदारियां होती है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।